السلام علیکم، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین جمیل، میں ہوں اطہر عدیل اور میں ہوں آپ کے ساتھ سعدیہ ظفر۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی سیاسی رہنما چودھری نثار کے گھر آمد۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے چودھری نثار سے ان کی خیریت دریافت کی۔ ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی اور ماضی کی یادیں تازہ کی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے چودھری نثار کو کھانے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم اور چودھری نثار کی عاشوراء محرم کے بعد پھر ملاقات ہوگی، آپ کو اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ سیاسی رہنما چودھری نثار کے گھر آمد۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے چودھری نثار سے ان کی خیریت دریافت کی۔ بجلی کی 500 ارب روپے کی چوری بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کر رہے ہیں۔ بجلی زیادہ کھپت کم ہے لیکن سولرائزیشن کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے۔ آج میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان بھر میں پی ٹی وی کی جو فی ہے اس کو میں آج ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اب اوور بلنگ کی شکایات ختم، اپنا میٹر اپنی ریڈنگ کے تحت پاور سمارٹ ایپ متعارف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاور سمارٹ ایپ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا میٹر ریڈنگ سے متعلق شکایات مل رہی تھیں۔ سب سے بڑا چیلنج پاور سیکٹر میں وہ دو ہیں، ایک بجلی کی چوری اور یہ 500 ارب روپے سالانہ کی چوری ہے۔ دوسرا جو چیلنج ہے، اس وقت بجلی زیادہ ہے اور اس کی کنزمپشن یعنی اس کی جو کھپت وہ کم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کر رہے ہیں۔ جو سولرائزیشن ہو رہی ہے پاکستان میں، اور میں اس کو بہت دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں، پینلز پاکستان میں لگائے جا رہے ہیں، اس کو ڈسکریج نہیں کریں گے۔ پاور سمارٹ ایپ فیچر بجلی صارفین کو مقررہ تاریخ پر اپنے میٹر کی تصویر لے کر ایپ پر اپلوڈ کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ اس نظام کا مقصد اوور بلنگ، ریڈنگ کی غلطیوں اور ریڈنگ میں تاخیر جیسے مسائل کا حل ہے۔ اگر صارف مقررہ دن پر ریڈنگ دے گا تو اس دن کے بعد لی گئی میٹر ریڈر کی ریڈنگ کو ترجیح نہیں دی جائے گی اور صرف صارف کی ریڈنگ ہی فیڈ کی جائے گی۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری کی قیادت میں ایک ٹیم نے اس جدید ایپ کو عملی جامہ پہنایا۔ مولانا فضل الرحمان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ تو 8 سال پہلے اگر ہماری بات مان لیتے، ہمارے آئین میں 1 یا 2 دفعات فاٹا سے متعلق تھے، تم نے 2 دفعات ختم کیے اور 200 دفعات ان کے اوپر مسلط کر دیے۔ نہ ایوان میں کوئی اس پر بحث ہوئی اور جو میں نے موقف پیش کیا تھا اس کے کسی ایک فقرے کا بھی مجھے جواب نہیں دیا گیا۔ آج پچھتا رہے ہو کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ تم نے فاٹا کے عوام اور کروڑوں عوام کے مستقبل کا فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر کیا تو پچھتانا تو پڑے گا۔ مان لو کہ تمہارے اندر سیاسی بصیرت نہیں ہے، مان لو کہ تم سیاسی لحاظ سے کورے ہو، تمہاری کھوپڑیوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے، دماغ کی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس ملک اور اس قوم کے مستقبل کو فیصلہ کر سکیں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد تیری فراست کو، قائد تیری فراست کو، جس طرح تم نے فاٹا کے عوام کا فیصلہ کیا، میں نے اسی وقت کہا تھا اور ایوان کے فلور پر کہا تھا کہ اگر اس طریقے سے تم نے فاٹا کا انضمام کیا تو پھر کشمیر انڈیا میں چلا جائے گا اور انڈیا بھی کشمیر کے بارے میں اسی طرح فیصلہ کرے گا۔ پھر کشمیر کا فیصلہ ہوا۔ ہندوستان نے اپنے آئین کا آرٹیکل 370 ختم کیا، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، جس طرح آپ نے یہاں فاٹا کی خصوصی اہمیت ختم کی۔ تو میرے محترم دوستو،
गलत फैसलों के गलत नताइज हुआ करते हैं। और जब हम डट गए तो हमें राजी करने के लिए यहां तक कह दिया कि अगर हमने फाटा का इंतजाम न किया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। जो इस मुल्क को अमेरिका की रजामंदी के साथ चलाते हैं, फिर जमहूरियत की बात क्यों करते हो? फिर अवाम की बात क्यों करते हो? फिर इस्लाम की बात क्यों करते हो? न तुम इस्लाम के नारे में सच्चे, न तुम अवाम के नारे में सच्चे, न तुम जमहूरियत के नारे में सच्चे, न तुम आईन के नारे में सच्चे। फिर आपको धांधली के नतीजे में हम किस तरह इस मुल्क पर हुक्मरानी का हक दे सकते हैं? तुमने पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अभी एक कानून साजी की और 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़की को निकाह को नाजायज करार दिया, सजाएं मुकर्रर की। मैं बताना चाहता हूं, जनरल मुशर्रफ के जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट से उस वक्त की हुकूमत की दो तिहाई अक्सरियत बनी और हुकूक निस्वान के खुशनुमा उन्वान के साथ उन्होंने आईन में तरमीम की और जिना बिर्रज़ा के लिए सहूलतें मुहैया की। हालांकि उलमा जानते हैं, आप भी जानते हैं, जिना रज़ा के साथ हो या जबर के साथ, दोनों यकसा जुर्म हैं। लेकिन उस तरमीम के साथ तुमने जिना का रास्ता खोलने की कोशिश की, जिना बिर्रज़ा के लिए सहूलतें मुहैया की और एक शरई निकाह जायज और हलाल ताल्लुक, उसके ऊपर आपने कतहरें लगा दी, सजाएं लगा दी। ये कैसा इस्लामी जमहूरिया है? ये तुम किस तरह के मुसलमान हुक्मरान हो कि तुम्हारी मुमलकत में, तुम्हारी हुकूमत में जिना के लिए तो सहूलतें मुहैया की जाएं और जायज और शरई निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जाएं। तुम जैसे हुक्मरानों के होते हुए मैंने उस दिन पार्लियामेंट में भी कहा कि तुमने छत के ऊपर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं और आप समझते हैं कि अल्लाह के नाम हमारे ऊपर रहमत के नुज़ूल का सबब बनेंगे। तुम्हें यह खौफ क्यों नहीं है कि अल्लाह के 99 नाम तुम्हारे ऊपर फिटकार भी कर रहे हैं? अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, अल्लाह की फिटकार से डरो। तुम खुदा से बगावत कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। पंजाब और केपी के कई इलाकों में मॉनसून की बारिशें। गुजरांवाला, सियालकोट और शेखुपुरा में भी बादल खूब बरसे। गुजरांवाला में आसमानी बिजली और फिरोजवाला में दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। ज़ियारत के मना डैम में 3 खवातीन डूब गईं, 2 की लाशें निकाल ली गईं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मॉनसून की बारिशें। गुजरांवाला, सियालकोट और शेखुपुरा में भी बादल खूब बरसे। लाहौर समेत पंजाब में आंधी के बाद बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिर गए। लाहौर में घर की छत गिरने से बच्ची और खातून जाँ बहक। शेराकोट में बिलबोर्ड गिरने से जख्मी होने वाला शहरी चल बसा। आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिर गए। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, आंधी की वजह से दरख्त गिरे और लाहौर में घर की छत गिरने से बच्ची और खातून जाँ बहक।
लाहौर में मानसून की बारिशों का आगाज़ हो गया। गिरदोनवाह में सुबह से बादलों का राज बरकरार है। ठंडी हवा ने गर्मी की शिद्दत को कम कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अफजाल तालिब से। जी अफजाल, बताइएगा लाहौर का मौसम कैसा है और कैसा रहेगा? आज ही बिल्कुल लाहौर में पंजाब भर में प्री मानसून का सिस्टम मौजूद है। कभी बारिश और कभी हब्स के सिलसिले से तमाम लोग दो चार हैं, लेकिन आज सुबह के वक्त जो है शदीद हब्स का सिलसिला जारी था, लेकिन दोपहर के वक्त जो है वो काले बादल ने पूरे आसमान को भी लपेट में ले लिया। तेज़ हवाओं के साथ बारिश ने जो है वो हब्स और गर्मी की शिद्दत में खासी कमी आ गई। मौसम खुशगवार हो गया। बारिश की वजह से जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी कुछ मुतासर ज़रूर हुई। दूसरी तरफ हम बात करें मौसम खुशगवार होने के तो लोगों की खासी तादाद छुट्टी के रोज़ जो है उसने पार्कों का रुख किया। यहाँ खासी तादाद जो है वो जलानी पार्क में आई हुई है। उनका कहना है कि चूँकि हब्स की वजह से खासे परेशान है, लिहाजा छुट्टी के रोज़ जो है वो मौसम भी खुशगवार हो गया, वो अपनी फैमिली से खैर खूब इंजॉय करें। दूसरी तरफ हम महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात की तरफ से जो है वो मज़ीद बारिशों की पेशेंगोई की गई है। इस वक्त भी लाहौर में काले बादलों ने पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले रखा है और तवक्का ये की जा रही है कि आइंदा जो है चंद जो है घंटों के बाद दोबारा बारिश के इम्कानात जो है वो ज़ाहिर किए गए हैं महकमा मौसमियात की तरफ से। जी अफजाल, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश के बाद सेम नाला बिफर गया। नाला ओवरफ्लो होने पर पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। नाले का पानी गलियों में कई फीट तक जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश के बायस सेम नाला बिफर गया। रुख करेंगे कराची का। कराची समेत सिंध भर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की कार्रवाइयां सूबे भर की 657 मार्केट्स का मुआयना किया। सिंध हुकूमत ने वाज़ेह किया है किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्लास्टिक से जान छुड़ाओ। कराची समेत सिंध भर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के ऐलान के बाद कार्रवाई का आगाज। 15 जून से पाबंदी के निफाज के बाद सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की जानिब से अब तक सूबे भर की 657 मार्केटों का मुआयना किया जा चुका है। कुछ दुकानदारों ने हुकूमत के साथ कोऑपरेट किया है, कुछ मार्केट्स कोऑपरेट कर रही हैं जिन्होंने प्लास्टिक बैग को ऑब्सोलीट करना शुरू कर दिया। सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, फाइन्स लगाए जा रहे हैं। दूध, गोश्त, सब्जी, तमाम अशिया जरूरत बरसों से प्लास्टिक की थैलियों में रखकर लाने का रुझान है, जिसकी वजह से शहरियों ने पाबंदी पर मिले जुले रुझान का इजहार किया। तकरीबन 2-3 साल से मैं ये सुन रहा हूँ कि प्लास्टिक का थैली बंद हो गया, कागज़ का शुरू हो गया, मगर अमल तो नहीं हुआ। अगर इनको एक्शन लेना चाहिए तो जहाँ बनने गोदाम में कंपनियों में जाए ना, पहले उधर बंद करवाए ना। दूसरी जानिब दुकानदारों ने हुकूमती फैसले की तायद की है। हमने वो थैली बिल्कुल खत्म कर दी है, अब ये थैली हम चला रहे हैं, ये वाली। तुम्हारे जो चेकिंग करने वाले आते, इनको रोजाना 3 चक्कर एक मार्केट में लगा हुआ। माहिरीन का कहना है कि प्लास्टिक की थैलियाँ 500 से 1000 साल तक भी घुल कर ख़त्म नहीं होती। अब जब एक चीज़ पे निफाज पे जोर दिया जा रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा लोग उन चीज़ों की तरफ लौटेंगे जो कि पहले से उनके पास मौजूद थी, जो कि माहौल दोस्त थी, माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। सिंध हुकूमत ने शहरियों पर जोर दिया कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में जिम्मेदारियाँ अदा करे और सौदा सल्फ के लिए माहौल दोस्त शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल करे। मोहम्मद सलीम, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। सिंध भर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के बाद सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की कार्रवाइयां जारी हैं। मज़ीद जानते हैं कराची में अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, बताइए। जी बिल्कुल, देखें सिंध काबीना के फैसले के बाद महकमा माहौलियात सिंध की जानिब से 30 अप्रैल को प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसके बाद फिर ये 2 माह का टाइम दिया गया था कि जिनके पास प्लास्टिक बैग्स पड़े हुए हैं वो इस्तेमाल कर लें। फिर जो है वो 15 जून से मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद की गई है। महकमा माहौलियात की जानिब से 657 मार्केट्स का भी जो है वो दौरा करके मुआयना किया गया है। महकमा माहौलियात के हुकाम के मुताबिक उन्होंने बेशतर जगहों पर कार्रवाइयाँ की हैं। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में उनकी टीम जो है वो मुआयना कर रही है, मार्केटों में जा रही है। उनका ये भी कहना है कि बेशतर जो बड़े स्टोर्स और शॉपिंग मॉल्स हैं उन्होंने जो है वो कानून पर अमल दरामद कर लिया है। सेक्रेटरी माहौलियात सिंध आगा शाहनवाज का ये कहना है कि सिंध को जो है वो माहौल दोस्त बनाना है, प्लास्टिक बैग्स का खात्मा लाना है और हुकूमत सिंध के फैसले पर अमल दरामद करवाना है। मोहम्मद सलीम, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।